Hello students, good morning. Today we are going to learn chapter number 17 Swabhikam Sadrashyam. Sadrashyam means it is a natural similarity which is seen, it is a natural similarity between all other things. So now it is an introduction. Nearly 2600 years ago, Acharya Panini had composed a book of grammar of Sanskrit language, namely Ashtadhyayi, written in aphoristic style Sutra Shaili. वो सूत्र शैली के स्टाइल में लिखी गई थी. सूत्र शैली की स्टाइल कैसी होती है कि इन दैट लाइक अ स्लोगन, लाइक अ गुड सेइंग्स इट इज़ रिटन. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सूत्र शैली. द बुक हैज़ कवर्ड द होल ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज इन अप्रोक्सीमेटली 4000 एफोरिज्म्स, यानी 4000 से ज़्यादा सूत्र उसमें लिखे गए थे. In short sentences, in very short sentences like Suvakya, as we are writing in a school, if you remember, every day we are writing on the board. For any good sayings we are writing. So that is called Sutra. As it is believed in almost 100 or 150 years after, Acharya Panini, Acharya Kartikeya has written Vartik. वार्तिक यानी अच्छी बातें जो कही गई है हमारे अनुभवी ऋषि मुनियों से. सो दैट इज कॉल्ड वार्तिक. Explicit explanations on these aphorisms sutra. In these Vartikas, deliberations have been done on these aphorisms. After another 100 or 150 years, on the base of those aphorisms and Vartikas, Patanjali has composed a भाष्य ग्रंथ. भाष्य यानी एक बुक लिखी गई, एक ग्रंथ लिखा गया है विच इज़ अ भाष्य यानी बोला गया एक्सप्लेनेशन. सो this Patanjali and Panini, in this all the creators are like a scientist of a ancient India. जो हमारा जो बहुत समय पहले जो इंडिया का जो कल्चर था वो ऋषि मुनियों के बेस पर था. इट इज़ ऑल थिंग्स वॉज डिपेंड ऑन अ आयुर्वेदा. पूरी की पूरी जो चीज़ थी वह आयुर्वेद पर डिपेंड थी. एंड देन जो अंग्रेज थे वह हमारी जो भाषा ग्रंथ है वह वहाँ पर लेकर गए, उन्होंने उनको ट्रांसलेट कर दिया. सो दैट वी आर थिंकिंग दैट वी डोंट हैव एनी, हमारे पास साइंस नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसा नॉलेज नहीं, मगर जो ऋषि मुनि थे उस समय अपनी अनुभव से, अपनी समझ से बहुत सारा विज्ञान जानते थे, विच इज़ नाउ वी आर यूजिंग है ना पतंजलि. मीन्स पतंजलि यानी पूरा का पूरा जो आयुर्वेद से बना हुआ विज्ञान होता है, दैट इज़ कॉल्ड आयुर्वेदा. सो the subject matter of the present lesson has been chosen from this Mahabhashya. Famous by the name of Mahabhashya, this book of Acharya Patanjali is seemingly a book of grammar. दिखने में वो तो एक ग्रामर जैसी बुक लग रही है. So even then, during its certain incidents, various principles of social, political and economical as well as those of physical science like astrology, geography have also been referred. It is not like that any science topic only they have included. They have included astrology also, geography also. Means from the all the way of point of view से उन्होंने सब चीज़ें हमें समझाई है, which is a very important for us in a social manner also, in a political and economical manner also. So this is a very important for human life. So ऐसा नहीं है कि उस समय अगर हम इस समय स्कूल में जाकर अच्छे से अच्छी बुक पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, एसेस पढ़ते हैं, देन वी आर लर्निंग एनी थिंग. बट इन दैट टाइम जो हमारे जो ग्रंथ है, जो प्राचीन ग्रंथ है, इन अ संस्कृत, इन अ प्राकृत, सो इन अ दैट डिफरेंट लैंग्वेजेस, they have included many topics which is regarding science, essays and many more topics like geography, astrology. So they have included all the topic in their granth. So these references indicate the extensiveness of the knowledge and science of that age. You can imagine it very well. वह कोई स्कूल में जाकर नहीं पढ़ते थे, मगर उस समय क्या था कि ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर वह अपनी शिक्षा लेते थे. सो इट वॉज गिवन. उस समय क्या था कि वह ऋषि मुनियों के द्वारा वह दी जाते थे. और उस समय क्या था, ग्रंथों के बेस पर ही देते थे. तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से जुड़े हुए जो कण होते थे, छोटे से छोटी कोई प्रकृति की चीज़ तो होती थी. फ्रॉम दैट दे वे टीचिंग, दे वे यूज टू टीचिंग देयर शिष्य. सो
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट एज. सो इन दिस दे हैव, उससे पता चलता है कि उनकी जो नॉलेज कितना, बोलते हैं ना कि अपरंपार था. उस समय उसके नॉलेज की कोई सीमा नहीं थी. इट वॉज एक्सटेंसिवनेस ऑफ द नॉलेज एंड साइंस इन दैट एज. इन दिस प्रेजेंट लेसन द डिस्कशन ओवर पाणिनिस एफोरिज्म यानी सूत्र स्थाने अंतरम has shown how the suggestions have been made by regarding the consent given to these principles in respect of the relations of the mutual behavior of human beings, gravitation as well as that of the fire on the land incorporating with the sun. So in this lesson they have given some examples of which is regarding to ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग दिखने में एक तरह के होते हैं. दे आर नॉट डिफरेंट. मीन्स सबकी दो आँखें होती है, दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं. इट इज़ नॉट लाइक दैट के ऑल द शेप्स आर डिफरेंट. सबकी दो ही आँखें होती है, किसी की एक आँख नहीं होती. सो इन ह्यूमन बींग्स देर आर सिमिलर डिफरेंट. यू कैन सी लाइक some are fat, some are thin, some are tall, some are short. So कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी हो तो सिमिलैरिटी क्या होती है? मोस्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटीज व्हाट? दे आर ह्यूमंस. मीन्स दे आर अ ह्यूमन बीइंग. वो दिखने में तो एक इंसान जैसे लगते हैं, बट दे कैन डिफरेंट फ्रॉम द फेस, फ्रॉम द शेप, फ्रॉम द बॉडी एंड फ्रॉम द नेचर. बट सिमिलरिटी क्या होती है? दे आर ह्यूमन बीइंग्स. सो ग्रेविटेशन इट इज़ अ, इफ़ वी आर थ्रोइंग समथिंग, तो हमने प्रकृति से, हमने ज़मीन में से, हमने कुदरत से सब कुछ लिया है. एंड व्हेन वी आर थ्रोइंग ऑन द लैंड, अदरवाइज वी आर थ्रोइंग इन अ गार्बेज. और वो गार्बेज कहाँ जाता है? इन अ, या तो वह समुद्र में चला जाता है, या तो जो कचरे का ढेर होता है वहाँ पर चला जाता है. यानी जो भी छोटी से छोटी चीज़ है वो प्रकृति से बनी हुई है, और कुदरत से बनी हुई चीज़ों को हम लास्ट में कहाँ जाने देते हैं? वहाँ पर ही जाने देते हैं. सो इफ़ इट इज़ लाइक क्ले ऑल्सो, जो मिट्टी का जो टुकड़ा होता है वो, उसको भी हम अगर लेते हैं पहले किसी भी चीज़, या तो हम उसको गमले में लगा देते हैं, बट आफ्टर यूजिंग इट, जब उसका उपयोग ख़त्म हो जाता है तो हम फाइनली उसको ज़मीन में ही उसको बेच देते हैं. मीन्स ज़मीन में उसको फेंक देते हैं. तो जो चीज़ जहाँ से आती है वहाँ पर चली जाती है. सो दैट इज़ द ग्रेविटेशन एज वेल एज दैट ऑफ द फायर ऑन द लैंड इनकॉर्पोरेटिंग विद द सन. सन क्या होता है? वह बड़ा ही आग का गोला होता है, और उसमें से जो आग के गोले होते हैं वो हमें गर्मी देते हैं. यानी यह एक बोला जाता है कि यह एक, उससे जलन होती है. सेम लाइक दैट इन फायर ऑल्सो, जब कैंडल जलाते हैं या दिया जलाते हैं तो उसकी जो फ्लेम होती है वह, अगर हम उसको छूते हैं तो हम जल जाते हैं, हमारा हाथ जल जाता है. तो वी शुड बी वेरी पर्टिकुलर इन दैट थिंग. तो फायर का जो, आग का जो फ्लेम होता है वो ऊपर सन के ऊपर ही जाता है. मीन्स इट इज़ उसका उसका जो सन का जो रेज होता है, उसके जो किरणें होती है वह सूर्य की तरफ होती है. सो इट शोज, जो चीज़ जहाँ होती है वहाँ पर आकर्षित हो जाती है. लाइक इट इज़ अ मैग्नेट, जो बोलते हैं ना कि मैग्नेट इफेक्ट हो जाती है, ग्रेविटेशन हो जाता है. यानी जो चीज़ जहाँ से जुड़ी हुई होती है, जहाँ से आई हुई होती है, वह वहाँ पर उसके सामने वह चली जाती है. दिस मेथड ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ वेरियस स्क्रिप्चर्स इन द बुक डिस्कसिंग द ग्रामर ऑफ लैंग्वेज provides inspiration to become an expert in multiple scriptures. A student learning any one scripture should have the knowledge of the principles of various scriptures. Means कभी भी कुछ भी चीज़ आप पढ़ने जाते हो, मीन्स इट इज़ टेकन फ्रॉम दैट ओनली. इफ़ यू आर गोइंग टू लर्न एनी टेक्स्ट बुक, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू लर्न संस्कृत टेक्स्ट बुक, बट संस्कृत टेक्स्ट बुक इट ઇઝ અ વેરી મેન પેલું કહે ને કે જો આપણે એક સૌથી અગત્યની વસ્તુ શું છે? સંસ્કૃત બુક. બટ દેર આર વેરી different manner, there very different type of lessons are there in a Sanskrit textbook. But overall we are doing doing our studies from the Sanskrit textbook. So main thing is what? Main thing we are learning anything from one thing only, but in a different aspects. So here this lesson is selected to provide inspiration for such skill. जो एक इंसान का अंदरूनी जो देखने का नज़रिया होता है, उनको परखने का जो एक तरीका होता है, यहाँ पर वह सिखाया गया है. इफ़ यू आर
मीन्स दे आर वॉचिंग ऑल द थिंग्स। हम कुछ भी देखते हैं तो हमें बहुत ही अलग अलग दिखता है, लुभावना दिखता है, बड़ा ही अच्छा दिखता है। बट इफ़ यू थिंक, तो वी आर थिंकिंग लाइक दैट ऑल द थिंग्स आर केम फ्रॉम सेम प्लेस। बट वेन जब उसका रूप दिया गया है तो वह अलग अलग तरह से उभर कर सामने आया है। दैट इज़ वाई वी आर थिंकिंग दिस ऑल द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दिस लेसन। संसारे विविधाः पदार्थाः सन्ति। सो संसार इन जो पृथ्वी होती है, जो हमारी दुनिया होती है, विविधाः डिफरेंट डिफरेंट, पदार्थाः मीन्स पदार्थ जो होते हैं, सन्ति देर आर इन संसार। संसार इज द सप्तमी एक वचन विभक्ति। विविधा पदार्थ सन्ति। इन दिस वर्ल्ड देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स आर देर। वी कैन सी इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, इन अ वेरी डिफरेंट शेप। बहुत सारी अलग अलग तरह तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तद्यथा, तद्यथा इट इज़ अ संधि शब्द। आप जो संधि शब्द होते हैं उसको अगर अलग करके पढ़ेंगे तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द लेसन। सो बेटर टू डू संधि शब्द एंड देन यू कैन रीड, अदरवाइज देन यू कैन लर्न। तथ यथा स्वर्ण, तथ यथा इन मीन्स फॉर एग्जाम्पल स्वर्ण लोह आदयो धातवः। स्वर्ण लोह आदय यानी स्वर्ण यानी गोल्ड और लोहा यानी इट इज़ अ आयरन। सो इट इज़ लाइक अ मेटल। धातव यानी मेटल जो होता है वह। सो स्वर्ण लोहा आदय मीन्स मेटल सच एज गोल्ड एंड आयरन एक्सेट्रा। सो इट इज़ टेलिंग फॉर एग्जाम्पल metals such as gold, iron, etc. So how it is different? जो धातुएं होती है that all the having a different shape like a gold, metal, iron. So we can see that there is a different types of things are there. But overall अगर देखा जाए तो it made from one thing only. वो अलग अलग तरह से नहीं उभर कर आते, ये सब जमीन के अंदर से ही मिलती है, भूमि के अंदर से ही मिलती है। बट उसका जो रूप होता है वो अलग होता है। सो वी आर थिंकिंग लाइक दैट दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग्स। बट ओवरऑल ये एक जगह से आती है और एक ही चीज़ में से होती है। बट इट इज़ उसके दो अलग अलग रूप बन जाते हैं। दैट इज़ वाई इट लुक्स डिफरेंट। सो सेम लाइक दैट वॉट खदीरा आदय वृक्षा। वॉट खदीर आदय, खदीर वॉट इज़ द बनियन ट्री एंड खदीर आदय, आदय यानी एक्सेट्रा। खदीर यानी जो खेर का जो वृक्ष होता है, खेर का जो पेड़ होता है उसके बारे में बात हो रही है। वट खदीर आदय वृक्षः यानी जो वट वृक्ष होता है यानी बनियन ट्री होता है उसके बारे में बात हो रही है। खदीर, खदीर यानी खेर एक्सेट्रा। गो घोटक आदय, गो यानी गाय यानी जो काव होती है वह, और घोटक, घोटक आदय, घोटक यानी हॉर्सेस। सो हियर दे आर टेलिंग अबाउट बीस्ट। सो बीस्ट such as a cows and horses. So पशवः चः, पशवः like all the animals means pet animals, domestic animals we are saying here. So गो घटक आदयः पशवः चः। पशु यानी ऐसे अलग अलग पशु जो होते हैं, जो बीस्ट होते हैं उसके बारे में वह बात कर रहे हैं। सो दिस सेंटेंस वी कैन ट्रांसलेट इन इंग्लिश ऑल्सो। सो दे आर टेलिंग फॉर एग्जाम्पल मेटल्स सच एज गोल्ड, आयरन एक्सेट्रा। Trees like banyan, khadir, etc. And beasts like cows, horses, etc. So these trees also we can see different. But the main thing is what they are trees. यह जो सब है वह वृक्ष ही है। जैसे कि धातु होती है, लोहा, लोहा जो होता है, पीतल होता है, जो सोना होता है। सो दैट ऑल द थिंग्स आर ऑल धातु मीन्स वो सब धातु है। बट है तो सब धातु है। जैसे कि वृक्ष होते हैं तो वृक्ष में वट होता है, अशोका ट्री होता है यानी आसोपालो, खदीरा ट्री यानी खेर का जो झाड़ होता है वो होता है, नीम का पेड़ होता है। सो दिस ऑल द हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ, किसके जो पर्ण होते हैं उसके पर्ण किसी के लंबे होते हैं, किसी के चौड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं। जो अगर ट्री का जो अगर जो ट्रंक देखा जाए, जो उसका वृक्ष का जो उसका ट्री ट्रंक का भाग देखा जाए तो कोई कोई पतला होता है तो कोई मोटा होता है। सो दे आर हैविंग अ डिफरेंट शेप्स लाइक ह्यूमन बींग्स, ओके। बट
मेन थिंग इज व्हाट दे ऑल आर ट्रीज. गो घटक आदय. गो यानी जो गाय होती है उसके बारे में बात हो रही है. घोटक आदय यानी अश्व घोड़े के बारे में बात हो रही है. सो दिस ऑल आर लाइक अ beast only. So it is like a pet animal, like a domestic animal. We can keep it our home also. We can use in a farming also. So the main thing is what they are all the beast. They are all the domestic animal. So दिखने में सब अलग अलग होते हैं. जैसे कि हमारी फॉर एग्जांपल हमारी 5 उंगलियां ले लें. हमारे हथेली की जो 5 उंगलियां होती है, हर उंगली का शेप अलग अलग होता है. मगर ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से उसका काम गलत हो जाता है, उसका उपयोग गलत हो जाएगा. अगर हमारे हाथ में से कोई एक भी उंगली ना हो तो हमें बहुत ही दिक्कत आती है. सो इट इज़ नॉट अ इम्पोर्टेंट थिंग. दिस ऑल द 5 फिंगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ फ्रॉम आवर वन हैंड ओनली. सो वी हैव मीन्स हमारा हाथ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है. सो जो दिखने में जो होता है जो अलग अलग होता है, मगर हर चीज़ का एक बोलते ना कि जो जो उसका उत्पादन होता है, जो उसका जो जहाँ से वो आता है वो एक ही होता है. बट उसका जो शेप होता है वह अलग अलग होता है. एषु पुनः प्रत्येकम अपि पदार्थाः भिन्ना भिन्ना भवन्ति. एषु पुनः मीन्स अगेन अमोंग दिस, फ्रॉम ऑल ऑफ दिस. प्रत्येकम अपि, प्रत्येक यानी उसमें से भी सारी अलग अलग. प्रत्येक यानी सब में से अभी अलग अलग पदार्थ यानी देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. पदार्थ यानी ऑब्जेक्ट्स होता है. भिन्न भिन्न भवंती, दे आर ऑल भिन्न भिन्न, दे आर ऑल डिफरेंट डिफरेंट. भवंती, भवंती इट इज़ अ वर्तमान काल परस्मय पद अन्य पुरुष बहुवचन. सो देर आर ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट. एषु पुनः मीन्स अमोंग दिस again every object is a very different. As I told, all are very different in a different manner, in a different shape, in a different मीन्स हर तरह से दिखने में ही अलग होते हैं. कोई अगर ध्यान से सोचे तो ही पता चलता है कि यह जहाँ से आती है चीज़ें, यह जहाँ से बनती है चीज़ें, वह उस चीज़ों का जो मूल होता है, जो उसका रूट होता है, वो एक ही है. सो फ्रॉम दैट वी कैन लर्न दैट ऑल द थिंग्स आर फ्रॉम द सेम थिंग. तद्यथा स्वर्णलोहात् भिन्नं भवति. तद्यथा यानी तत् मीन्स यानी जो तद्यथा यानी जो फॉर एग्जाम्पल दिस स्वर्ण लोहात् भिन्न भवति. फॉर एग्जाम्पल हियर टेलिंग गोल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द आयरन. गोल्ड का प्राइस कितना होता है और आयरन का इतना प्राइस नहीं होता है, मगर यह किसी चीज़ों को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए उसका जो जैसे कि नेल होती है, उसको किसी चीज़ को हथौड़ा जो होता है उसको किसी चीज़ को जोड़ने के लिए, बनाने के लिए उसका उपयोग होता है. सुवर्ण यानी जो गोल्ड होता है उसको हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, उसको संभाल के रखना पड़ता है बिकॉज उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है. सो फॉर एग्जाम्पल गोल्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन. अथ च प्रत्येकं सुवर्णखंड परस्परम आकारेण प्रकारेण च भिन्न भिन्न भवति. सो अथ च, सो फ्रॉम दैट प्रत्येक सुवर्णखंड यानी जो सोने का जो टुकड़ा होता है, जो अलग अलग प्रकार के जो टुकड़े होते हैं, परस्परम आकारेण प्रकारेण च भिन्न भिन्न भवति. आकारेण प्रकारेण च. सो इन रिस्पेक्ट ऑफ अ शेप एंड टाइप. आकारेण प्रकारेण, आकार यानी शेप, प्रकार यानी टाइप. सो आकारेण एंड प्रकारेण दिस ऑल द आर तृतीया एकवचन विभक्ति. यानी यह तृतीया एकवचन विभक्ति का शब्द है. सो दिस ऑल द थिंग्स व्हेन आई एम स्पीकिंग साइड बाय साइड इन द लेसन ग्रामर पॉइंट्स दैट यू कैन राइट ऑल्सो, अदरवाइज यू कैन लर्न ऑल्सो. सो हियर दे आर टेलिंग सुवर्ण जो होता है, जैसे कि सोने का हार होता है, अंगूठी होती है, जो आपकी जो बालियाँ होती हैं, दैट ऑल आर हैविंग डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट टाइप्स. उसका जो 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 घाट होता है वो भी अलग होता है, उसका जो जो जड़ता जो होता है वो भी अलग होता है. बट ऑल द थिंग्स आर बेटर फ्रॉम द gold. So in a look it is a different, in a types and in a shape it is a different, but all the things are same. But so here what they are telling, and every single piece of gold it is different from the other in a shape and in a kind यानी क्वालिटी में वह तरह तरह के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं. So students, here this first paragraph and introduction of this lesson we have completed in our first part of a lesson, first part of this lesson 17 Swabhayikam Sadrashyam. So what other things are there in a natural similarity that we will learn in our next chapter. Till then you have to learn
first paragraph translation, and you have to learn these all the sentences. Thank you.